to debate number 2. It's a double murder that can shake even the most cold-hearted. Two young, innocent, unsuspecting children were hacked to death in UP's Badaयूं inside their house by someone they knew and used to call Bhaiya. The horror struck at around 6:30 p.m. on Tuesday. A local barber, Sajid, along with his brother Javed, went to the house of Vinod Kumar, the father of the victims. Sajid, who had recently opened a barber shop in the locality, allegedly attacked the three brothers, Ayush 13, Ahan 6 and Piyush 9 years old with a knife. Ayush and Ahan died in the attack, while Piyush was rushed to a hospital with grievous wounds. Listening to the young, scarred soul detailing the horror. ये बीच वाला है, यही बच के आया था जी। बच के आया वाला। बता, आजा पीयूष। क्या हुआ था बाबू? ऊपर जैसे ही मैं गया, मैंने कहा भैया हुआ क्या, तभी उन्होंने मेरा मुंह बंद करके ऐसे दिखा दी, तभी मुझ पर हमला करने की कोशिश करी। मैंने उनके पैर में कांच लग गया, तभी मैं नीचे भाग आया। कांच पड़ी। घर पे आके किसको बताया नीचे आपने? मम्मी और दादी को बताया। बिल्कुल, देखिए ये वही छोटा बच्चा है जिसने अपनी जान बचाई और नीचे भाग कर आया, और इसी घर के 3rd फ्लोर पे बताया जा रहा है कि वो पहुंचा था। Hours after the murder, the accused Sajid, who was caught by the mob, was gunned down in an encounter with the police. His brother Javed, however, managed to flee. Sajid's shop was set on fire as an angry mob vandalized some shops in the area. His father and uncle have been detained by the police. Sources now say that the accused may face bulldozer action. However, more foul than the crime is the kind of politics that's now taking place. Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, senior SP leader, has blamed the BJP for starting violence. IP Singh, spokesperson, has seen an RSS conspiracy to spread violence, and Vivek Sailas has doubted the BJP's intentions, making a clear case of crime into a political tool. In fact, the Samajwadi Party sent a delegation to Badaयूं as well, but it was clear that it was just a formality. The SP leaders did not even meet the victim's family. They just stood outside, spoke to the media and left. ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। देखिए, बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। एनकाउंटर तो कर ही दिया है, तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें। The BJP is gunning for Samajwadi Party, accusing them of trying to polarize. भारतीय जनता पार्टी को ये भी महसूस हो रहा है, प्रतीत उनको लग रहा है कि वो चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। इस तरह की घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी खुद अंजाम दिलवा रही है और एक सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसके जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो चुनावी फायदा और देश की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के मंशे क्या है। दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस तरह से एक घटना हुई है बदायूं में। परिवार के साथ उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना ही इस पे राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं? सांप्रदायिकता की, क्योंकि उनका वोट बैंक एक चलता है। जहां पे कोई व्यक्ति एक घुसता है, वो घुस के अंदर बच्चों की हत्या करता है और उसके अंदर वो सांप्रदायिकता ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवाती है। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Taking this across to our panel, with us is Manish Shukla, spokesperson of the BJP. Dr. Vikram Singh, former DGP of Uttar Pradesh, is with us. We also have with us Lokesh Jindal, political analyst. But I want to go first and foremost to SP leader Syed Masoodul Hasan. Syed Masoodul Hasan, sir, सवाल ये है कि इतनी घिनौनी, एक तरह से बर्बरता से भरी हुई एक वारदात होती है, क्राइम होती है, और ऐसे में हम पॉलिटिक्स इसमें ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को बीजेपी से जोड़ के देख रही है? क्या किसी बीजेपी के लीडर के इससे जुड़े रहने की खबर है? क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान दे रही है? देखिए, चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटना हो जाना और फिल्मी स्टाइल में पुलिस का पहुंच करके एनकाउंटर कर देना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से बदायूं में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे सांप्रदायिकता का माहौल बने
और वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति को फायदा पहुंच सके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी तो इस तरह के क्राइम हुए हैं। इलाहाबाद के अंदर अभी 2 दिन पहले एक घर की बहू ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनके मैके वालों ने ससुराल वालों के घर में आग लगा दी। तो और उससे पहले हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? तो ये तो पिछले 10 सालों से हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और सांप्रदायिकता का बहाना लेकर के कोई जावेद सलीम, मुझे एक चीज बताइए, 2 बच्चों की इस तरह की कत्ल की घटना आपने कब सुनी है लास्ट? एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। एक बच्चों का गला काट के इस तरह का हत्या करने वाले की आपने कब लास्ट खबर सुनी है? ऐसा कब हुआ है? देखिए, खाली बच्चों का गला काटने से काट करके हत्या होना ही हत्या नहीं है। जो हत्या हाथरस में हुई थी सर, सबसे वो भी गलत है। मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि जो हाथरस में हुआ वो सही हुआ, बिल्कुल गलत हुआ हाथरस में। मैं कह रहा हूं सर, गलत हुआ, हत्या नहीं थी। लेकिन सर इस तरह की जब याद करिए, जब क्या नाम है, एक झोपड़ी वाले के घर पे बुलडोजर चलाया गया, एक माँ और बेटी जल करके मर गई, वो याद नहीं आ रहा। मनीष शुक्ला, आप जवाब दीजिए। इस हत्या के अंदर ऑलराइट, आप सवाल पूछ रहे हैं। आई वांट द बीजेपी स्पोक्सपर्सन टू रिस्पॉन्ड टू दैट। मनीष शुक्ला, और भी हत्याएं हुई हैं, और भी क्रूरता दिखाई गई है, सरकार की ओर से भी तरह तरह की क्रूरता दिखाई गई, यह आरोप है। देखिए, सैयद मसदूल हसन का जवाब दीजिए। बदायूं में जो कल दुर्घटना हुई, जिस तरीके से 2 बच्चों की नृशंस हत्या की गई, भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार मर्माहत है। उसका एक हत्यारा पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जावेद फरार है। पुलिस और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, जल्दी वो भी कानून के शिकंजों के पीछे होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, इस अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, 3 लोगों ने जो बयान दिया है उसमें एक बार भी हत्यारों के खिलाफ या जो फरार है उसकी गिरफ्तारी की मांग करना, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं। केवल और केवल लाश पर राजनीति करने का घृणित खेल समाजवादी पार्टी कर रही है, और उसी को एड ऑन कर रहे हैं उनके जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठे हैं। देखिए, कितना दुर्भाग्य है, सरकार ने अरे भाई, इस तरह से शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए। ये कोई समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी चल रहा है, बात हो जाने दीजिए। देखिए, बदायूं में तो त्वरित कार्रवाई पुलिस ने की है। अगर सरकार की मंशा माहौल को खराब करने की होती तो 2013 की तरह, जैसे गौरव और सचिन की बहन के साथ छेड़खानी के बाद विरोध करने पर गौरव सचिन की मुजफ्फरनगर में हत्या हुई थी, और समाजवादी पार्टी और आजम खान पूरी तरह से हत्यारों के साथ खड़े हो गए थे, तब दंगे होते हैं। तुरंत हत्यारों पर कार्रवाई करना यानी काबू में करने के लिए काम करना, और पुलिस ने तत्काल वहां शांति व्यवस्था स्थापित की। एक हत्यारा मारा गया है, एक हत्यारा तुरंत कब्जे में होगा, पुलिस के शिकंजों के पीछे होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून को हाथ में लेने वाला बचेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माहौल को सांप्रदायिकरण देना चाहती है, लेकिन आईपी सिंह ये सवाल पूछ रहे हैं मनीष शुक्ला की कमलेश तिवारी के हत्यारे कहाँ हैं? अगर कानून व्यवस्था पे वाकई में काम हुआ है तो उन हत्यारों को भी पकड़ा जाना चाहिए था, ये सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी। जवाब दीजिए। नहीं, समाजवादी पार्टी को हमको लगता है अध्ययन में नहीं है। कमलेश तिवारी का हत्यारा पकड़ा गया है, कानून अपना उस पर काम कर रहा है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि इनको ध्यान में भी नहीं है। लेकिन देखिए, मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरह जो भी कानून को हाथ में लेगा वो सकिंचों के पीछे होगा। कोई अखिलेश यादव की सरकार थोड़ी है कि वोट के लिए आतंकियों को छोड़ दो, वोट के लिए अपराधियों के साथ खड़े हो जाओ। कवर फायर देने का काम, हत्यारों को कवर फायर देने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। लोकेश जिंदल, you know, it's every political party and of course every state government which is accountable for law and order, it's understandable that opposition would hold them to account. That you know the law and order situation is getting out of hand, etc. It happens in all states, whichever party may be the ruling party there. But to connect it to the ruling party, an incident like this, the Samajwadi Party insists that this is linked to the BJP, you know, spreading some kind of polarization and violence. Do you agree with them on that point? Well, Madhav, this gruesome killing has certain important aspects that we must look at. It was a cold-blooded murder. We do not have innocent children
entering into some form of an enmity with any individual. This form of a murder is a gruesome, cold-blooded murder. And second aspect is the district magistrate ordering a magisterial probe into the encounter. So the idea is this is not some form of a very some ordinary crime. However, it is something way beyond than that. And over here, the question mark is what exactly is the law and order situation in Uttar Pradesh? Now, if this was not some sort of a heat of the moment or some sort of a vengeance on on any person, innocents are killed. What was the motive underneath it? Was it to spread terror? Was it to having some form of political objective, some form of personal enmity or anything? These things need to be probed into a great detail. There is a need that doing away with politics. Well, no one is doubting that. Responsible for it must be brought to. Yes. All politicians perhaps have to be responsible. I'm glad you're taking that position. Dr. Vikram Singh is a former DGP of UP, and Dr. Vikram Singh, 2 or 3 points that come out of this. A, is the encounter really something that raises questions, because there are those in this particular case who are saying that the accused was handed over with a knife or some sort of weapon of that sort, and he was handed over to the police. Is it possible that he had access to a gun or some other way in which he could have attacked the police? And also we know the questions that have been raised by the Apex Court itself in 2014 in cases of such encounters. Good evening, Madhav. Encounters are within the ambit of law, Section 94 to Section 106 of the IPC, right of private defense, use of minimum force to disable and neutralize the assailant to safeguard one's life or somebody else's life and property. In this case, as it is alleged that he was apprehended by the public and handed over to the police, much water since has flown, and it is possible also that that man could have accosted one of the policemen, taken or tried to snatch the weapon and tried to fire at the police. The magisterial inquiry is on, and that will go to the truth. Now, to question any encounter, a magisterial inquiry has been ordered, it is investigated, and the final report is accepted by the court. Only then an encounter can be said to be justified. Otherwise, a case of murder can also be lodged against the assault party, and then there'll be very serious trouble for the assault party. Make no mistake about it, a magisterial inquiry, a criminal investigation, a complaint, if it comes, if anybody, a murder case can also be registered. It is not that one is trigger happy and one can gun down anyone at will. But the fact of the matter is to question the encounter, to give cover fire to the assailants, and also to give defense to the entire, to dilute the whole issue and to say it is all politics, and because of the communal politics, this incident happened. Not a word of sympathy for the victim family, not a word of condemnation for the assailants. This is what shocks and surprises me the most. Madhav, we need to wake up. This is a wake-up call. In my 36 years of career, have not seen anything as ghastly or as brutal as this. Well, it's a very, very brutal crime. I don't think there's any two ways about it. We cannot equate this with other kinds of crime. It's perhaps the worst sort of depraved, side of human beings that we've seen, and that's why there's a lot of outrage that has been expressed on this incident. But in any event, Manish Shukla, Dr. Vikram Singh, Syed Masoodul Hasan, and Lokesh Jindal, I'd like to thank all of you for joining us this evening. Joining us now are the parents of the 2 young victims of the brutal crime that has not just shaken all of Uttar Pradesh or India, but in fact across the world. People are commenting on the brutality of this particular incident. Vinod Kumar is a father, Sangeeta Devi is a mother who is speaking to us here on Times Now. Vinod Kumar जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और संगीता जी आपका भी हमारे साथ बात करने के लिए. सबसे पहले विनोद जी आपसे पूछना चाहूँगा, उस घटना के बारे में बताइए, क्या हुआ था? ना वो नाई था हमारे यहाँ, बच्चे मतलब बाल कटिंग कराते थे, हम भी मतलब बाल कटिंग कराते थे, सामने दुकान थी हमारे यहाँ. और वो आया था हमारी मैडम से पैसे मांगने के लिए, तो बोला कि भाभी जी ऐसा है 5000 रुपये दे दीजिए मुझे और हम आपको कल वापस कर देंगे. तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कि अगर ऐसी बात है, बोले उसने कहा कि हमारे मतलब वो मैडम की डिलीवरी होने के लिए है. तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा दे दो, कोई बात नहीं, कल मिल जाएंगे, दे देगा वो, कल नहीं देगा परसों दे देगा, क्योंकि 1-2 बार हो चुका था, 1000 रुपये ले लिए, कभी 500 लिए उसने. तो ऐसा था मतलब सिस्टम. और दुकान भी हमारी है कॉस्मेटिक की, तो वहाँ से भी सामान ले जाता था अपने बच्चों के लिए. उसके बाद फिर वो आया, बोला कि 5000 रुपये तो दे दिए हम लोगों ने, इन्होंने
और फिर जे चली गई अंदर के लिए, बोलो चाय बना दें। बोलो कि भाई भाभी ऐसा है कि अभी हम 1 घंटे के बाद जाएंगे, चलो थोड़ा जो है टहल लें। तो वो हमारा आयुष था, सीधा लड़का था बड़ा वाला, वो उसके साथ जो है उसे लेवा ले गया छत पे। जब छत पे लेके गया था उसे लेवा के, तो उसने क्या काम किया, छोटा आ रहा था पीछे से, तो उसने कहा आहन पानी ले आओ 1 गिलास में, उससे पानी मंगाया था। उस लड़के को माने वहीं खत्म कर दिया चाकू मार के। और छोटा वाला जब आया पानी लेके, तो उसको भी उसने गर्दन उसकी काट दी। जब बीच वाला गया था ऊपर देखने के लिए कि भैया कहाँ है, देखे तो वो उसकी गर्दन काट रहा था, तो उसने देखा तो उसने उस पर भी वार किया, तो उसका पैर फिसल गया था साजिद का, तो उसके जो है वहां कांच पड़ा था, गिलास टूटा हुआ, तो वो उसके पैर में लग गया, इसलिए जो है उसका जो है पैर काम नहीं किया, फिर उसने वार किया हाथ, तो उसके तब भी जो है अंगूठे में उसके चोट लग गई थी। उसके बाद फिर जो भाग के गया पीयूष हमारा, देखा जाके कि गर्दन काटा, तो भागते हुआ आया नीचे की मम्मी कि वो भैया जो है दादा को काट रहा है चाकू से, तुम वहां मत जाना ना चाकू मार देगा। तब नीचे भागता हुआ आया, तो फिर इन्होंने जो है देखा कि मम्मी बोली कि अरे ये तो बहुत लेके फिर रहा है तलवार, चाकू बड़ा है, उसका खून मार हाथ। अब हमारी मैडम को बुला के इधर आओ करके, अब जे घबरा गई, फिर मम्मी जाके भज के गेट बंद किया, फिर ये चिल्लानी बाहर चिल्लाने के बाद जो है फिर वो पब्लिक हमारी आ गई, मोहल्ले वाले आ गए सब, फिर उसको जो है वही मकान में ही पकड़ लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया, और हवाले करने के बाद फिर पुलिस अपने साथ ले गई। क्या वो अकेला था कि उसका भाई भी था साथ में? हेलो, हाँ जी, क्या वो अकेला था कि कोई और भी था साथ में? उसमें दोनों भाई थे, जावेद और साजिद दोनों थे। और कुछ समझ आई आपको अभी तक की वजह क्या थी? दोनों बर्बरता से उन्होंने जो हत्या करी है बच्चों की, कुछ वजह आपको समझ आई अब तक? तभी तो हम मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इसकी जांच चाहिए। जब जांच पड़ेगी, जांच पता चलेगी कि हाँ क्या जांच हो रही है, तब पता चलेगा किसने क्या कारण था, किस लिए मारा गया, बच्चे मारे इसने हमारे। बगैर जांच के हमको क्या पता, अभी नहीं पता चल रहा है कि हमारे बच्चे मारे क्यों इसने हैं। जी, और मैं संगीता जी से भी पूछना चाहूंगा। संगीता जी, आपको उन्होंने कहा 5,000 रुपए लेते वक्त कि घर में डिलीवरी के लिए के पैसे चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी भी कोई बात नहीं थी, उनके घर वालों ने भी ये बात से इनकार किया है। क्या बातचीत हुई थी आपकी इस हत्या से पहले? जी बोला कि मुझे भाभी, मुझे 5,000 रुपये जरूरत है, दे दो, और मेरी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है और उसे दिखाना है, उसको 11 बजे का टाइम दिया है और उसकी डिलीवरी होने को। तो हमने चलो अल्लाह मुसीबत सब पे आती है, हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा दे दो, मैंने दे दिए। तो बोला मुझे लेट जाना पड़ेगा, तो हमने कोई बात नहीं टहल लो आप। तभी वो चला गया, पर फिर मेरे दोनों बच्चों को काट दिया उसने जाके। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों क्या करेंगे जाके। जी, और फिर आपने देखा कि हत्या के बाद कि वो आपके तरफ भी आने लगा था चाकू लेके? हाँ, वो कह रहा चाकू लेके आया, कह रहा इधर आ जा, अजीब तरीका का मुंह बना के कह रहा इधर आ, तुझे भी काटूं, इधर आ तुझे भी काटूं। मैंने उसका गेट बंद कर दिया, मम्मी और बच्चों को बाहर, एक रह गया उसे भी बाहर निकाल दिया मम्मी को। तो हमने गेट बंद कर दिया, तुरंत पुलिस वालों को फोन कर दिया, तब उसे तुरंत पकड़ लेके गए। तो पुलिस दोनों को घर से लेके गई थी उस वक्त? हाँ, एक को लेके गई, एक भाग गया। जब तक हम लोग मतलब आवाज मारी गई है, तब तक वो लड़का एक भाग गया था, एक रह गया था जो कातिल था उसमें, जो हमला कर रहा था। जो जिसने हमला किया वही मिला था मुझे। तो आपकी पुलिस से मांगे कि दूसरे व्यक्ति को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्या आपने कुछ मांग की है इस वक्त पुलिस से? आपने पुलिस की कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, कि वो कहाँ पे है इस वक्त? मैंने की है फिलहाल, अभी 24 नहीं, अभी कोई जानकारी मुझे नहीं मिल पाई पुलिस से जो है, और 24 घंटे तो हो ही गए हमारे यहाँ, मगर अभी इस चीज़ की वार्ता नहीं हुई है कि हमारा वो लड़का जो पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया है, कोई बात की भी सूचना नहीं आई हमारे पास। जी, और इसके अलावा क्या कोई पुरानी कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की कोई बात थी?
नहीं नहीं, ऐसी कोई विवाद नहीं था, ना हमारी किसी झगड़ा था, ना किसी से विवाद होता है, ना कभी नहीं हमने लड़ाई लड़ी है। और बाकी सब मेल प्रेम से रहते थे, मगर पता नहीं उसका क्या सिस्टम था। और हम तो ये लगता है किसी की साजिश है ये, और बगैर साजिश के ये काम नहीं हुआ है। साजिश से ही ये काम होता है, क्योंकि अब बताओ उसका क्या मैटर था। वो मोहम्मद था, वो कहाँ का रहने वाला था, ये खाली नाई का काम करता था। इसको या तो किसी ने व्यवस्था कराई है, पहले लेन देन करके कराया हो, कुछ भी कराया हो फिलहाल, कि इसलिए इसकी भी जानकारी मुझे नहीं मिली है। मैं ये चाहता हूँ कि योगी जी से, क्या मोदी जी से, क्योंकि मैं उनका वोटर हूँ, हमारा पूरा घर वोटर उनका है, बीजेपी का, और हम उनको वोट देते हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे इस चीज की जांच चाहिए, चाहे जैसे जांच करवाएं वो। जांच होगी तभी मुझे सुरक्षा मिलेगी। अगर सुरक्षा नहीं हुई हमारी, तो हमको कब चाहे तो कब मार सकता है, कि हम तो रहते नहीं घर पे। जी मैडम रहती है, हमारी मम्मी रहती है, एक बच्चा रह गया हमारा, दो तो चले ही गए हमारे। जी जी, जो कुछ लोग हैं जो इनकाउंटर हुआ है उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ? जी नहीं, इनकाउंटर तो सही हुआ, इनकाउंटर अच्छा हुआ, मगर जाता कि अब ये पकड़ा जाए तो उससे पता चले कि हाँ हम किस सिस्टम से हमने ये काम करवाया है, और क्या हमने मात्रा की मतलब वार्ता उठाई गई है कि हमने बच्चों को काटा है, ये क्या मतलब मैटर था इसका। भाई हमारी कभी दुश्मनाई ना भला किसी से हुई है, तो ये ऐसा हुआ क्यों काम, या किसी ने करवाया है, इस चीज को पता चले कम से कम। हमें को नहीं पता चल रहा है कि हम किस सिस्टम से बोले कि हाँ हमारे बच्चे जो है कत्ल हुआ दोनों का। और संगीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, पुलिस से, कि किस तरह वो आप चाहते हैं कि न्याय हो उस पूरे मामले में? क्या मांग होगी आपकी? बस हम यही मांग रहे हैं कि जैसे हमारे बच्चों को महाराज एक तो गया, दूसरा रह गया, उसका इंसाफ ये चाहिए। पहले उससे पूछताछ की जाए, जैसे उसने बच्चे मेरे काटे उसी तरह वो भी काटा जाए, तब मैं मेरे आंखों के सामने, तब मुझे तसल्ली आएगी। लेकिन आपको विश्वास है पुलिस में? योगी सर, मुझे बस यही जी नहीं, विश्वास है पुलिस में। उसने विश्वास का थोड़ा काम भी किया है, उसने 3 घंटे में उसका इनकाउंटर भी किया है। और हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि हमको सुरक्षा दी जाए, और हमको जो है जांच बैठा ली जाए, कि बगैर जांच के हमारा कोई कार्य नहीं हो पाएगा। कि जांच जब तक नहीं होगी हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे किस कारण मारे गए हैं, कि इनके पीछे कौन सा राज है। जी जी, और आज जो वहां पे जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब दल आके आपसे मिले हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने आके आपसे बातचीत की है आज इस घटना के बाद? जी, सारे राजनीतिक दल आए थे, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है। जी जी जी, उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, हमारी पार्टी आपके साथ है, और जो सही होगा हम पूरा करेंगे। और ये वादा करते हैं कि जो भी जांच अगर आती है तो जांच की भी हम व्यवस्था कराएंगे, जांच करवा के रखेंगे हम। जो अभी पार्टी गई है यहाँ से उठ के, उन्होंने भी ये कहा है, जो मैडम आई थी, और हम भी उन्होंने यही कहा है कि हमको जांच की ही ज़रूरत है। जब तक जांच नहीं होगी हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे किस किस कारण मारे गए हैं। हम तो यही इसी बात से सोच में पड़े हैं, कल से हम आए हैं कि हमको यही नहीं पता चल रहा है कि हमारे बच्चे क्यों काटे गए या क्यों इसने ऐसा काम किया है। जी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद कुमार जी और संगीता देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। Certainly an extremely shocking incident, and what makes matters even more complicated is the fact that even now the parents are not even aware of the motive of what exactly happened, why it happened, because the nature of this incident itself is so very shocking, and the brutality of it as well, extremely shocking, the manner in which all of this has played out. I'd like to thank you for joining us, and of course Vinod Kumar and Sangeeta Devi, hoping for justice at the very earliest.